Good morning, students of class 2. This is your ma'am S.T. Joshi and I am again here to teach you computers. Do you remember the first lesson that we did? Computer and electronic device, and in that lesson we learned about the IPO cycle. The IPO cycle, input, process, output. Do you remember? Yes, very good. I know you all of you are very smart and very intelligent and you remember everything. Now today we will learn this, we will do this new lesson, input output devices. Okay, we learned in the first chapter about this, but we learned little bit. Today we will learn it a little more. We will know about the IPO cycle a little more. आज हम और भी ज़्यादा IPO cycle को समझेंगे और हम उसको जानेंगे. Okay? Now let us start. कंप्यूटर इज़ मेड ऑफ मैनी कॉम्पोनेंट्स. ठीक है, कंप्यूटर जो है बहुत अलग अलग पार्ट्स को मिला के बनाया जाता है. कोई भी चीज़ अगर आप देखेंगे, एनीथिंग यू सी, अ कार और अ मोटरसाइकिल, अ हाउस और एनीथिंग, यू हैव टॉयज. डू यू हैव टॉयज? ब्लॉक टॉयज डू यू हैव? जब आपके पास कोई टॉय आता है तो क्या आप उसको बनाने के लिए आप अलग अलग आपको पार्ट्स जोड़ने होते हैं ना. आप जब बाइक बनती है, जब कार्स बनते हैं, अलग अलग पार्ट्स को जोड़ा जाता है, फिर एक कार बनती है, फिर एक बाइक बनती है. मिक्सर, जूसर, अलग कोई भी चीज़ बनाने के लिए, एनीथिंग यू हैव टू क्रिएट, डिफरेंट कंपोनेंट्स आर देयर, अलग अलग पार्ट्स होते हैं. इन द सेम वे कंप्यूटर्स के भी अलग अलग पार्ट्स होते हैं. इन द सेम वे कंप्यूटर ऑल्सो हैज डिफरेंट parts. Now let us see further, and what does these parts do and what does happen in the IPO cycle. As we did in the first lesson, we did that the computer takes instructions. कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस लेता है. कैसे लेता है? थ्रू इनपुट डिवाइसेस. हम इनपुट करते हैं, फिर CPU जो है वो प्रोसेस करता है. इट डज द प्रोसेसिंग एंड देन वी गेट द रिजल्ट through the output devices, okay, on the monitor, printed paper or etc. Okay, now let us see the input data or instructions and the IPO cycle. Okay, now let us learn what are the input devices. ये input devices होती क्या है? ओके, हमने फर्स्ट लेसन में भी पढ़ा था. आई टॉट यू इन द फर्स्ट लेसन, बट लेट अस सी अगेन. द इनपुट डिवाइसेस आर कीबोर्ड, माउस एंड माइक्रोफोन. ओके, नाउ इन द फर्स्ट लेसन हमने क्या पढ़ा था? आई टोल्ड यू द एग्जाम्पल ऑफ अ शार्पनर एंड अ वॉशिंग मशीन. मैंने आपको बताया था एग्जाम्पल. डू यू रिमेंबर? यस, कि कैसे हम इनपुट करते हैं, कब इनपुट करते हैं, क्या प्रोसेसिंग होता है, क्या आउटपुट होता है. सो व्हाट आर द इनपुट डिवाइसेस इन द कंप्यूटर? कंप्यूटर के अंदर क्या इनपुट डिवाइसेस होती है? कैसे हम अपनी बातों को, अपना जो हम चाहते हैं, वॉट एवर वी वॉन्ट, जो हम टाइप करना चाहते हैं, हम कैसे उसको हम कंप्यूटर में कैसे डालते हैं? हाउ डू वी पुट इट इन द कंप्यूटर? Through input devices. Now what are these input devices? Number one, keyboard. Okay, number one is keyboard. Do you know? Have you seen a keyboard? Yes, many of you have seen a keyboard. Now remember one thing, there is a keyboard in your mobile also. Have you seen? In your mobile also there is a keyboard where all the numbers are there, all the alphabets are there, all the signs and symbols are there. Have you seen? That is also a keyboard, and that is your input device. Whenever you use that keyboard to type something on WhatsApp, on YouTube or anything, on any social media or anything, you're making some assignments on your mobile, so you use that keyboard. ठीक है, वो ये कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस है. कीबोर्ड इज द मोस्ट कॉमन and very popular input device which helps in inputting data to the computer. The data and instructions are sent to the memory unit of the computer by typing on the keyboard. हम कीबोर्ड से हम जो कुछ भी हम अंदर कंप्यूटर के डालना चाहते हैं, हम कीबोर्ड से के थ्रू अ कीबोर्ड वी डू इट. ओके, यू टाइप योर नेम, यू टाइप योर एज, लेटर्स, वर्ड्स, sentences or numbers are typed as data. Whatever information you will type, how will you type it? Only through a keyboard. Okay, so keyboard is very very important. कीबोर्ड बहुत important है. Now the next one is a mouse.
Okay, what is it? A mouse, not that rat mouse, वो चूहा नहीं, but उसी के जैसे दिखने वाला एक माउस, जिससे कि हम इनपुट के लिए यूज करते, वी यूज इट एज एन इनपुट डिवाइस. ओके, एंड व्हाट डज द माउस डू? What does this book say about the mouse? Mouse is the most popular pointing device and cursor control device which sends signal to the CPU. What does a mouse do? It is the most popular pointing device. Point करने, आपने cursor देखा होगा. Have you seen a cursor on your computer or on your mobile? जो ऐसे blink करता रहता है, that is your cursor. और वो कैसे move होता है आपके कंप्यूटर पे? It moves through a mouse. या आप लैपटॉप्स पे ऐसे टच से करते हैं ना, और कई बार हम माउस यूज करते हैं. सो माउस इज ऑल्सो एन इनपुट डिवाइस. और जो कुछ भी आप माउस से क्लिक करते हैं, इट सेंड्स सिग्नल टू द CPU. वो सिग्नल सेंड करता है CPU को. ओके, व्हेन द माउस बटन्स आर प्रेस्ड, देन द सिग्नल इज सेंड टू द CPU. ओके, व्हेन वी click, double click or drag the mouse for sending the instructions. हम एक बार क्लिक करते हैं, we do double clicking and we can also drag. Okay, drag मतलब ऐसे एक साइड से दूसरी साइड ऐसे हम जब लेके जाते हैं, that is known as, or like this ना, कि that is known as dragging. Okay, then the next one is number 3 or C you can say is microphone. Third input device is a microphone. Is an input device which is used to record or send sounds to a computer. Have you seen a microphone? Yes, you speak into a microphone. आपको कोई भी आवाज़ को, वॉइस को रिकॉर्ड करना, you do it through a microphone में आप बोलते हैं, फिर वो आप उसको कंप्यूटर में सेंड कर देते हैं, वो स्टोर हो जाता है वहाँ पे. Okay, now these were the 3 input devices. Now there is, on page number 30 there is a diagram on input devices. Okay, you draw this diagram in your copy. Okay, when you are writing your question answers, you write this, you draw this diagram in your copy also. And let us see quickly what are these input devices. Joystick, light pen, barcode reader, trackball, scanner and digital camera. Okay, again I will repeat it for you. Joystick, light pen, barcode reader, trackball, scanner and digital camera. These all are input devices. Okay, these all are input devices. आपको कुछ भी कंप्यूटर में स्टोर कर डालना है, आप थ्रू ये input devices के थ्रू डाल सकते हैं. डिजिटल कैमरा में आप फ़ोटो खींचते हैं और आपको फ़ोटोज़ अगर अपने उसमें कंप्यूटर में डालना है तो आप अपने कंप्यूटर में डिजिटल कैमरा के थ्रू भी डाल सकते हैं. ओके, देन स्कैनर से भी अगर आपको कोई फ़ोटो को स्कैन करना है, सो दैट इज़ एन इनपुट डिवाइस. ओके, ट्रैक बॉल, अ बार कोड रीडर जो बार कोड्स को रीड करता है, दैट इज़ अ बार कोड रीडर. लाइट पेन एंड जॉयस्टिक, दीज आर ऑल इनपुट devices. Okay, now let us quickly see the output devices. What are the output devices? Where you see the outcome. Okay, now for example, monitor, printer and speaker. Monitor, printer and speaker are output devices. Okay, monitor is the main output device of a computer. Have you seen the monitor? Yes, the screen is the monitor. It is the main output device. It displays the, जो भी आपने इनपुट किया है वो आप जो है कहाँ देखेंगे. आपने अपना नेम टाइप किया, आप कहाँ देखेंगे? मॉनिटर के ऊपर देखेंगे. आपने कोई सम को सॉल्व किया, कहाँ देखेंगे? मॉनिटर पे या स्क्रीन पे या इवन मोबाइल पे आप देखते हैं. ओके, एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज विजुअल डिस्प्ले यूनिट, VDU, विजुअल डिस्प्ले यूनिट. Okay, the output which is shown on the screen of monitor cannot be touched by us is known as soft copy. Okay, और उसमें एक soft copy होती है जो कि हम उसे touch नहीं कर सकते हैं. It is known as the soft copy. Hard copy क्या होता है? जो आप पेपर में देखते हैं. And one is the soft copy. Now the next one is printer. What is the next one? Printer is an output device which is used to print information on paper. The output which we receive on a paper can be touched by us is known as a hard copy.
What cannot be touched by us is known as soft copy, but what we can touch is known as hard copy. Printer, have you seen a printer? Many of you might be having a printer at home. जो कुछ भी आपने टाइप किया आपको उसका प्रिंट आउट चाहिए. Okay, so that is now a printer is an output device. आपने प्रिंट आउट आया और जैसे फॉर एग्जाम्पल ये आपकी बुक है ना, ये कैसे प्रिंट हुई? थ्रू अ प्रिंटर. ये आपकी जो है आउटपुट डिवाइस कि ये आपका एक समझ लीजिए प्रिंटर के द्वारा ये प्रिंट हुआ और ऐसे आपके हैंड में आए. इसमें जो टाइपिंग हुई है, किसी ने टाइप किया, कंप्यूटर में स्टोर किया, फिर उसका प्रिंट आउट आया और आपको ये बुक मिल गई. आपकी सारी बुक्स ऐसे ही बनी होंगी. ओके, नाउ द नेक्स्ट वन इज स्पीकर. ओके, नंबर 1 वॉज मॉनिटर, नंबर 2 प्रिंटर, नंबर 3 स्पीकर. दीज ऑल आर आउटपुट डिवाइसेस. Speaker is an output device which allows us to listen to music or any other sound. Do you have speakers at home? Yes. See, I also have a speaker. This is also a speaker. Through this speaker, you can listen to music. Okay. And your mobile also has a speaker. Your computer also has a speaker. और आपको कोई मूवी देखनी है, आपको कोई गाना सुनना है, वो आप स्पीकर के थ्रू सुन सकते हैं. राइट, दीज आर ऑल आउटपुट डिवाइसेस जो आप सुन सकते हैं. ओके, नाउ द अदर आउटपुट डिवाइसेस आर हेडफोन. ओके, हेडफोन कौन सा? तो जो आप कान में ऐसे लगाते हैं ना, गाना सुनते हैं. ताकि हेडफोन्स क्यों यूज हम करते हैं? व्हाई डू यू यूज हेडफोन्स? सो दैट अदर्स डू नॉट गेट डिस्टर्ब, ताकि दूसरे लोग डिस्टर्ब ना हो. अगर आपका एग्जाम नहीं है पर आपकी सिस्टर का एग्जाम है और आपको गाना सुनने का मन है, पिक्चर देखने का मन है, तो आप कान में हेडफोन लगा के सुन सकते हैं. आप सुनेंगे, कोई और नहीं सुनेगा, सो कोई और डिस्टर्ब भी नहीं होगा. नाउ द नेक्स्ट वन इज प्रोजेक्टर. ओके, प्रोजेक्टर्स होते हैं जिसमें हम फिल्म्स दे सकते हैं. ओके, एंड प्लॉटर्स, इट इज अ प्रिंटर यूज फॉर डिजाइनिंग पर्पस. प्लॉटर्स होते हैं, इट इज अ काइंड ऑफ अ प्रिंटर जिसमें कि हम जो डिजाइन बनाने के लिए यूज होता है. आपकी जिनके पास बुक्स नहीं है, कोई बात नहीं, मैं आपको पेजेस सेंड करूंगी, उसमें आप देख सकते हैं. ओके, देन वेबकैम. Have you seen a webcam? It is a small video camera attached to the monitor. Webcam के थ्रू हम एक दूसरे को हम देख सकते हैं. Okay, now the next is storage devices. Now first we learned about the input devices, then we learned about the output devices. Now let us quickly learn about the storage device. What do you mean by storage? Storage means कि हम जब कोई चीज़ को स्टोर करके रखते हैं. ओके, हम जो भी आपने कंप्यूटर में डाला वो वहाँ पे स्टोर्ड रहता है. Alright, now let us see. Storage devices are hardware that store data or information temporarily or permanently for a computer. Now what are the kinds of storage devices? Primary storage and secondary storage. Okay, now primary storage is the main memory in a computer. Primary storage is the main memory in the computer. वो इनबिल्ट होता है. ओके, वो कंप्यूटर में इनबिल्ट होता है. 2 टाइप्स के स्टोरेज डिवाइसेस होते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी. ओके, जो प्राइमरी होता है वो कंप्यूटर के अंदर पहले से होता है. जैसे आपके फ़ोन के अंदर पहले से एक होता है ना, जब आप अपने फ़ोन का स्टोरेज देखते हैं तो 2 आता है, एक कार्ड आता है और एक आता है आपका डिवाइस जो आपका फ़ोन का स्टोरेज कैपेसिटी है. एक उसमें चीज़ें स्टोर होती हैं, फिर आपका अगर आप उसमें कार्ड डालना चाहते हैं, छोटा सा कार्ड जो कि मेमोरी कार्ड होता है, उसमें भी आप चीज़ों को स्टोर कर सकते हैं. पर जो प्राइमरी स्टोरेज होता है वो आपके कंप्यूटर में या मोबाइल में पहले से होता है. Okay, and it stores data and programs that can be accessed directly by the processor or the CPU. Okay, now for example, what are the primary storages? What are the primary storages? RAM. Okay, RAM, random access memory. अब आप RAM के बारे में आगे जब बड़े क्लास में जाएंगे तो और भी ज़्यादा उसके बारे में हम पढ़ेंगे. Okay, now then the next one is ROM, read only memory. एंड वन इज जब आप अक्सर अपने
मोबाइल में देखते होंगे स्टोरेज में कैशे, ओके, CACHE, इसको बोलते हैं कैशे, ओके। इसमें भी स्टोरेज होता है, इसमें भी स्टोर, और कई बार ये इतना फिल हो जाता है कि आपका लैपटॉप या आपका कंप्यूटर, खासतौर से आपका मोबाइल बहुत ज़्यादा दिखाता है कि स्टोरेज बहुत बढ़ गया। इसमें बहुत सी चीज़ें स्टोर हो जाती हैं जिसको आप डिलीट करते हैं तो आपका फ़ोन भी खाली हो जाता है, ओके। सो ये सब पहले से आपके कंप्यूटर में ये स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं, ओके। नाउ द सेकेंडरी स्टोरेज, ये कौन सी थी? प्राइमरी स्टोरेज, जो पहले से कंप्यूटर में होती हैं, इवन आपके मोबाइल में भी। नाउ द सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस जो होती हैं वो बाहर से होती है, दे आर आउटवर्ड, दे आर एक्सटर्नल डिवाइसेस, दे आर एक्सटर्नल मतलब बाहर से। नाउ लेट अस सी क्विकली व्हाट आर दोज, ओके। Secondary storage is another alternative storage to save the work, डॉक्यूमेंट्स, फोटो, म्यूजिक, मूवीज। आपके जैसे आपने फोन में देखा होगा, ओके। अगर आप अपने फोन के स्टोरेज एरिया में जाएंगे वो आपको दो दिखाएगा, एक कार्ड, एक SD कार्ड और एक आपका फोन की मेमोरी, ठीक है। तो एक तो पहले से होता है और एक मैंने आपको बताया सेकेंडरी स्टोरेज होता है, जो आप बाहर से छोटा सा कार्ड उसमें डालते हैं, उसमें सब कुछ स्टोर रहता है। अगर आपका अपना मोबाइल में अगर आप ढेर सारी चीज़ें, ढेर सारे स्टोर कर देंगे तो फुल हो जाता है, इसलिए फिर आप वो दूसरा कार्ड यूज़ कर सकते हैं, SD कार्ड, या इवन मोबाइल में या इवन अपने लैपटॉप में, अपने कंप्यूटर्स में, ओके। इट इज़ वेरी यूजफुल टू स्टोर लार्ज नंबर्स ऑफ प्रोग्राम्स परमानेंटली, ओके। जो सेकेंडरी स्टोरेज होता है वो बहुत यूजफुल होता है। नाउ लेट अस क्विकली सी सेकेंडरी स्टोरेज में होता कौन कौन से डिवाइसेस होती हैं जो सेकेंडरी स्टोरेज में आती हैं। नाउ नंबर 1 इज हार्ड डिस्क, ओके, नंबर 1 इज हार्ड डिस्क। देन नंबर 2 इज CDs देखिए ना, कॉम्पैक्ट डिस्क्स, देन DVDs, देन पेन ड्राइव्स, है ना। आपके अब तो आपके पेन ड्राइव्स होती हैं ऐसी छोटी सी, आपके TV पे भी LED में भी लग जाती है, ओके। दीज आर ऑल सेकेंडरी, ये बाहर से होती है, ठीक है, एक्स्ट्रा आपको मेमोरी देती हैं ये। ऑलराइट, नाउ लेट अस सी फर्दर, लेट अस लर्न हाउ आउटपुट डिवाइसेस वर्क एज स्टोरेज डिवाइसेस, ओके। कैसे आउटपुट डिवाइसेस जो हैं वो स्टोरेज डिवाइसेस में काम करती हैं। वेरियस टाइप्स ऑफ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइसेस ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल डिवाइसेस वर्क एज इनपुट एज वेल एज आउटपुट डिवाइसेस। ये दोनों तरीके से काम करती है, इनपुट भी होती है और आउटपुट डिवाइसेस भी होती है। द स्टोर्ड इंफॉर्मेशन कैन बी ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम वन कंप्यूटर टू अदर एज व्हेन नीडेड, है ना। आप एक गाना जो आप अपने लैपटॉप में देख रहे हो, फिर आप अपने TV में भी देखना चाहते हो, तो आप ये पेन ड्राइव के थ्रू कर सकते हैं, आप DVDs के थ्रू कर सकते हैं, आप CDs के थ्रू कर सकते हैं। एक जगह वो स्टोर्ड है, आप उसको दूसरी जगह भी स्टोर कर सकते हैं, ओके। एक जगह से दूसरी जगह आप ले जा सकते हैं उसको। दीज एक्सटर्नल डिवाइसेस आर कनेक्टेड टू द कंप्यूटर विद अ केबल प्लग्ड इनटू अ सूटेबल पॉइंट ऑफ कनेक्शन सच एज अ USB पोर्ट। आपने ऐसे एक तार देखी होगी ना, एक वायर, USB पोर्ट जिसे बोलते हैं, जो आपके लैपटॉप में कनेक्ट हो जाती है, आपके मोबाइल में कनेक्ट हो जाती है या आपके कंप्यूटर में कनेक्ट हो जाती है। आपको एक कोई भी डॉक्यूमेंट है आपका कोई भी फिल्म है जो आप अपने फ़ोन से अपने लैपटॉप में डालना चाहते हैं, तो आप उसको USB से डाल सकते हैं, या अपने कंप्यूटर से अपने फ़ोन में डालना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, राइट। दीज आर ऑल स्टोरेज डिवाइसेस। नाउ these storage devices can be carried easily, और आप इनको easily कैरी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बहुत भारी नहीं होता। क्या पेन ड्राइव बहुत भारी होती है? नहीं, पेन ड्राइव बिल्कुल भी भारी नहीं होती है। सो these are all the storage devices. Now let us learn quickly about the CDs. CDs or compact disc is a portable disc which can store large amount of data such as documents, music, videos, etc. I told you about the CDs, okay. Then आप एक जगह से दूसरी जगह भी उसको ट्रांसफर कर सकते हैं। Then DVDs, digital video disc, is a portable disc which can store large files as movies or music. Movies और music आप सब DVDs में जो है स्टोर कर सकते हैं। DVDs CDs से ज़्यादा स्टोर कर सकते हैं, उनके अंदर ज़्यादा कैपेसिटी होती है। देन पेन ड्राइव्स आर ऑल्सो नोन एज USB फ्लैश ड्राइव्स, ओके, जिसे हम PD भी बोलते हैं। दे आर स्मॉल इन साइज, लाइट वेट, रिमूवेबल, रीराइटेबल, छोटी साइज में होती हैं
और हल्की होती हैं, रिमूवेबल होती हैं, आप उनको निकाल सकते हैं, एंड रीराइटेबल, आपने अगर उसमें कुछ ऑलरेडी है तो आप दोबारा और उसमें अगर कुछ ऐड करना चाहते हैं उसी के ऊपर आप कर सकते हैं। ओके, दे आर सबसे ज़्यादा आजकल सबसे ज़्यादा जो है PDs यूज़ होती है, पेन ड्राइव्स यूज़ होती है, DVDs और CDs से बहुत ज़्यादा पेन ड्राइव्स यूज़ होती है। ओके, नाउ there are some exercises, so you do these exercises in your book. Okay, some exercises are to be done in your book and some exercises are done in your copy. I will send you a PDF. In there will be question and answers, so you can copy the question and answers in your copy. Don't do all the exercises in your copy, only few exercises. Okay, exercise on page number 35, circle the correct option, you do this in your copy. Okay, then tick mark, you do this in your copy, then fill in the blanks, do this in your copy, question answers, do this in your copy. Okay, then there are other exercises, उनको आप जो दूसरी एक्सरसाइजेज हैं, कुछ एक्सरसाइजेज आप बुक में ही रहने देंगे, जैसे पेज नंबर 37 पे एक्सरसाइज नंबर 4 आप अपनी बुक में ही करिएगा, ठीक है, कॉपी में नहीं करना है। देन एक्सरसाइज 6 आप अपनी कॉपी में करिएगा। देन एक्सरसाइज 7 आप अपनी कॉपी में नहीं, अपनी बुक में करना है। 4 एक्सरसाइज 4, एक्सरसाइज 6, एक्सरसाइज 7 सब आप अपनी बुक में करेंगे, कॉपी में नहीं करेंगे। कॉपी में सिर्फ क्वेश्चन एंड आंसर्स, ओके, फिल इन द ब्लैंक्स, टिक द करेक्ट आंसर, ये सब आप अपनी कॉपी में ही करेंगे। ओके चिल्ड्रन, गॉड ब्लेस यू एंड टेक केयर। नाउ वी हैव, लिसन वेरी केयरफुली, वी हैव completed the half yearly course. Okay, God bless you.